बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम आज की एक डॉन न्यूज़ स्टोरी को इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करेंगे, उसको रीड आउट करेंगे। ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो सहाफ़ती ज़बान स्पेशली इंग्लिश समझना चाह रहे हैं और जनरल इंग्लिश लर्नर्स के लिए भी एज वेल। सो लेट्स किक ऑफ। LV has no role in provincial poll dates, says ECP. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सूबाई इंतखाबात की तारीखों में अलवी का कोई किरदार नहीं है। ये स्टोरी इफ्तिखार अहमद खान साहब की तरफ से तकरीबन 10 घंटे पहले 19 फरवरी 2023 यानी आज ही की तारीख को शाये हुई है। Islamabad, the Election Commission of Pakistan, ECP, on Saturday told President Arif Alvi in so many words that he has no role in the announcement of dates for general elections to provincial assemblies, and the Commission is aware of its constitutional obligation in this regard. Islamabad, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी ने हफ्ते के रोज सदर आरिफ अलवी को दो टोक अल्फाज में कहा कि सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीखों के ऐलान में उनका कोई किरदार नहीं और कमीशन इस हवाले से अपनी आइनी जिम्मेदारियों से आगाह है। According to Article 48(5) of the Constitution, where the National Assembly is dissolved by the President, he shall appoint a date for election and appoint a caretaker cabinet in accordance with the provision of Article 224, or as the case may be under Article 224. Similarly, where a governor of a province dissolves a provincial assembly under Article 105(3)(a), he shall appoint a date for general elections to the assembly and shall appoint a caretaker cabinet. Chief Election Commissioner Sikandar Sultan Raja wrote to President Alvi in response to his letter. आइन के आर्टिकल 48(5) के मुताबिक जहां सदर के जरिए कौमी असम्बली को तहलील किया जाता है, वो आर्टिकल 224 की शिक के मुताबिक इंतखाबात के लिए एक तारीख मुकर्रर करेगा और निगरान काबीना का तकर्रुर करेगा, या जैसा कि आर्टिकल 224(a) के तहत मामला हो सकता है। इसी तरह जहां एक सूबे का गवर्नर आर्टिकल 105(3)(a) के तहत सूबाई असम्बली को तहलील करता है, वह असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेगा और निगरान काबीना का तकर्रुर करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आरिफ अलवी सदर को उनके खत के जवाब में लिखा। The CEC's letter, a copy of which is available with Dawn, draws President's attention to the Commission's constitutional obligation to organize and conduct elections under Article 218(3). चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खत, जिसकी एक कॉपी डॉन के पास दस्तयाब है या एक नकल डॉन के पास दस्तयाब है, सदर की तवज्जो आर्टिकल 218(3) के तहत इंतखाबात के इनेकाद और इनेकाद के लिए कमीशन की आइनी जिम्मेदारी की तरफ मबजूल कराती है। The letter also objects to the language used by the president, as it says, quote, "The office of the president is the highest constitutional body, and president is head of the state, whereas all other constitutional and legal bodies are under constitutional obligation to offer utmost respect for the president office. We are sure that it is impartial and expect parental guidance from this prestigious office towards other constitutional bodies and expect that there will be better choice of words while addressing such other constitutional institutions." Unquote. खत में सदर की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली जबान पर भी एतराज किया गया है, जैसा कि इसमें कहा गया है, सदर का ओहदा सबसे बड़ा आइनी इदारा है और सदर रियासत के सरबराह के तौर पर काम करता है, जबकि दीगर तमाम आइनी और कानूनी इदारे आइनी जिम्मेदारी के तहत हैं कि वो सदर ममलिकत के सदर दफ्तर का इंतहाई एहतराम करें। हमें यकीन है कि ये गैर जानिबदार है और इस बावकार दफ्तर से दीगर आइनी इदारों की तरफ एक बड़े की रहनुमाई की तवक्को रखते हैं
और उम्मीद करते हैं कि ऐसे दीगर आईनी इदारों से खिताब करते हुए अल्फाज का बेहतर इंतखाब होगा। CEC objects to choice of words in President's letter. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर के खत में अल्फाज के चुनाव पर एतराज किया। The ECP's response comes 10 days after the president's letter to it, and a day after Mr. Alvi wrote another letter, this time inviting CEC for an urgent meeting on February 20th regarding consultations on date of general elections. In his letter to the CEC, the president had expressed displeasure over the apathy and inaction on the part of the commission that did not respond to his earlier letter. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब सदर के उस खत के 10 दिन बाद आया और मिस्टर अलवी की तरफ से एक दूसरा खत लिखने के एक दिन बाद। इस बार आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक मुशावरत के हवाले से 20 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक हंगामी इजलास के लिए मदऊ किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे अपने खत में सदर ने कमीशन की जानिब से बेहिसी और बेअमली पर नाराजगी का इजहार किया। ये लफ्ज़ यहाँ दुरुस्त कर लेते हैं, नाराज़गी का इजहार किया था, जिसने उनके पहले खत का जवाब नहीं दिया। Mr. Alvi stated he had waited anxiously that the ECP would realize its constitutional duties to proceed and act accordingly, but was extremely dismayed by the Commission's poignant approach on this important matter. मिस्टर अलवी ने कहा कि वो बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेट मी रेक्टिफाई, आगे बढ़ने और उसके मुताबिक काम करने के लिए अपने आईनी फ़राइज़ का एहसास करेगा, लेकिन हम इस अहम मामले पर कमीशन के रूखे अंदाज से इंतहाई मायूसी हुई। पोइनियंट कहते हैं रूखा, हार्श और मायूस कुन रवैया। The CAC in his letter says the commission is trying its level best to fulfill its constitutional duties without any pressure or fear. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने खत में लिखा है या कहा है कि कमीशन बगैर किसी दबाव और खौफ के अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहा है। It mentions that provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa (KP) had been dissolved on January 14 and January 18 respectively, after which it approached governors of both provinces, asking them to announce dates for general elections, and reminders were also sent to them on January 29. It refers to the petitions filed by the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) and 3 others in Lahore High Court, which directed the ECP on February 10 to hold a consultative meeting with the Punjab governor and fix a date for the polls. इसमें बताया गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा केपी की सूबाई असम्बलियां बिल तरतीब 14 जनवरी और 18 जनवरी को तहलील कर दी गई थीं, जिसके बाद उन्होंने दोनों सूबों के गवर्नर्स या गवर्नरों, उर्दू में गवर्नरों कहना चाहिए हमें, से राबता किया और उनसे आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने को कहा और उन्हें भी हम दुरुस्त कर लेते हैं, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। 29 जनवरी को याद दहानियां भी भेजी गईं। इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और 3 दीगर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों का हवाला दिया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 10 फरवरी को गवर्नर पंजाब के साथ मुशावरती इजलास मुनक्किद करने और इंतखाबात के लिए एक तारीख तय करने की हिदायत की गई थी। On February 14, it says, the Election Commission Secretary, Special Secretary, and Director General Law held a meeting with the Punjab governor, who regretted to announce poll date and expressed his intention to approach the legal forum.
इसमें कहा गया है कि 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या कहेंगे उर्दू में, सेक्रेटरी कह दें, और डायरेक्टर जनरल कानून ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, जिन्हों को जिन्होंने इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर अफसोस का इजहार किया और कानूनी फोरम से रुजू करने का इरादा किया। The Election Commission is fully cognizant of its constitutional obligations to organize and conduct the election and has taken all necessary steps in this regard. It will not be out of place to mention here that the role of the Honorable President and the Governor of a province is clearly mentioned in Article 48(5) and 105(3) of the Constitution, respectively. इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद और इनेकाद के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है और उसने इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इकदाम किए हैं। यहाँ यह जिक्र करना बेजाना होगा कि आइन के आर्टिकल 48(5) और 105(3) में मुअज़्ज़ज़ सदर और सूबे के गवर्नर का किरदार वाज़े तौर पर दर्ज है। It stresses that the Constitution does not empower the Commission to fix a date for general election to an assembly in the case of dissolution. It says the Commission was mandated to organize and conduct the election to Senate of Pakistan by elections of the assemblies under Section 102 and Senate without any consultation. Quote, in this regard, it has fulfilled its obligations as so many by-elections to the Senate, National Assembly and provincial assemblies have been held well within time, and Commission did not hesitate to announce the date of such elections. The latest example is the immediate announcement of schedule of the elections on seats of National Assembly from where MNAs have registered, unquote, it says. इसमें जोर दिया गया है कि आइन कमीशन को ये इख्तियार नहीं देता कि वो तहलील होने की सूरत में असेंबली में आम इंतखाबात की तारीख तय करे। इसमें कहा गया है कि कमीशन को सेनेट ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 102 के तहत असेंबलियों और सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात बगैर किसी मशावरत के मुनक़िद करने और करवाने का या कराने का हुक्म दिया गया था। इस हवाले से उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, क्योंकि सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के बहुत से ज़िमनी इंतखाबात वक्त के अंदर अच्छे तरीक़ों से हुए हैं और कमीशन ने ऐसे इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल का फौरी ऐलान है, जहाँ से MNAs ने इस्तीफ़ा दिया था। दे दिया है, sorry. The CEC said had the framers of the Constitution intention to confer powers on the Commission to announce poll date in case of dissolution of an assembly, it would have clearly mentioned the same in Article 45, 58, 105, or 112 of the Constitution. Quote, at the same time, the Elections Act 2017 also does not confer powers on the Commission to announce a poll date except in Senate elections and all by-elections. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर आइन बनाने वाले किसी असेंबली को तहलील करने की सूरत में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के इख्तियारात कमीशन को देने का इरादा रखते तो आइन के आर्टिकल 48, 58, 105 या 112 में वाज़े तौर पर इसका जिक्र होता, जबकि इलेक्शंस एक्ट 2017 भी कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार नहीं देता, सिवाय सेनेट के इंतखाबात और तमाम ज़िमनी इंतखाबात के। He said the Lahore High Court, while interpreting different provisions of the Constitution, has held that the Commission shall consult the Governor for appointment of the poll date. The Election Commission, after holding meeting with the Punjab Governor, decided to file a civil miscellaneous application in the Lahore High Court seeking further guidance, which has been objected to by the Office of the LHC Registrar on the ground that the matter stands decided and the civil miscellaneous application is not maintainable. उन्होंने कहा
दोबारा से हम उन्हों को दुरुस्त कर लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने आइन की मुख्तलिफ शिकों की तशरीह करते हुए कहा है कि कमीशन इंतखाबात की तारीख की तकर्री के लिए गवर्नर से मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद मजीद रहनुमाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दीवानी मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया। दीवानी सिविल को कहा जाता है, मुतफर्रिक मिसलेनियस, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के दफ्तर ने इस बुनियाद पर एतराज़ किया है कि मामला फैसला कुन है और दीवानी मुतफर्रिक दरख्वास्त बरकरार रखने के काबिल नहीं। The Commission has also challenged the LHC judgment on the ground that the Constitution and the law does not provide any consultation by the Commission with the Governor. कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया है कि आईन और कानून कमीशन की तरफ से गवर्नर के साथ कोई मुशावरत फराहम नहीं करता। पब्लिश्ड इन डॉन फरवरी 19th 2023। ये खबर डॉन में 19 फरवरी 2023 को शाये हुई।